have told you yesterday that we are going to start with what? Answer writing practice for your mains. How to write an answer, how to understand things. Answer writing for mains. Without this, your dream to become an officer is just a dream. ठीक है? If you don't know how to write an answer, फिर होगा क्या उससे? आपको कितनी भी knowledge हो, if you are not able to present your knowledge in a way that is asked by UPSC, तो कोई फायदा है ही नहीं. ठीक है? Answer writing is the main backbone of anyone, कोई भी जो भी पढ़ रहा है, of qualifying this examination. With this, we need to understand first, you have to write, सबसे पहली बात, you have to write 2 general studies papers a day. ठीक है? You have GS 1, 2, 3 and 4. You have your optional paper as paper 1 and your paper 2. English भी है, another language है, वो qualifying है, उसको साइड में रखो. Main is this, plus you have your essay paper. And in every paper you have to write. You have to write and write. What, sir, what do we have to write? Obviously, what is asked in the question you have to write, but how to write it, how to write that thing, you have to master those practices. क्या करना है इसमें? सबसे पहले किसी भी आंसर को लिखने से पहले you should understand there are 2 things in that answer. Number 1 is the part of your preparation and the part of your presentation. These 2 should reflect in your answer. The preparation part as well as presentation part. The preparation part is the part which you are doing here, ठीक है? From your traditional books, from your current affair sources, from government reports, everything from traditional books. You are doing your preparation from current affair sources, ठीक है? From government reports. यहाँ से आपको मिलता है सब कुछ, या आपको statistics मिलता है, facts and figures. ये सब कुछ आपका preparation part constitute करता है. This constitutes your preparation part. This is your content. यहाँ से आपके आंसर में क्या आता है? Content. You have to write something, ना? What they are asking. This is the content part of your answer. Your class notes and everything. ये अच्छे से, if you are conceptually clear, then you can have a good content. ये तैयार है, ठीक है? Now you have to write this content. That becomes an issue. ठीक है? While writing this content, there are multiple things you have to keep in mind. इस कंटेंट को लिखने में you have to keep in mind. Number 1, most important thing, ये किस पेपर का सवाल है? This question जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो is part of which general studies paper? ये GS 1 में आ रहा है, 2 में, 3 में या 4 में? Depending upon the general studies paper, the content will change a little bit. ठीक है? The orientation will be different. For example, we had this demographic dividend question. In this demographic dividend question, if it is asked as in paper 1 as a part of Indian society, ठीक है? The approach is somehow different. And the same demographic dividend, if it is asked in general studies 3, the approach will be different. The approach will be more towards economy and economic development. ठीक है? पहले तो ये आपका डिफाइन करेगा कंटेंट की ओरिएंटेशन किस पेपर में आ रहा है. ठीक है? पहली चीज. सेकेंड, the most important thing with respect to your answer writing is understanding the keyword. Understanding the keyword. What is the keyword in the question? What is the keyword the UPSC is asking you? पहला, for example, you have different keywords like discuss. You have explain.
you have elucidate, you have analyze, ठीक है, you have elaborate, you have, एक सेकेंड, you have to what extent, ठीक है, discuss, explain, elucidate, analyze, elaborate, to what extent, and you have critically examine, ठीक है, you have illustrate, you have substantiate. These are the broad what keywords that are used in your answer. पहले तो सबसे important चीज, you have to see your answer belongs to which of the general studies paper. Based on that paper, you have to make your inclination towards that answer. The second important thing is the keyword associated with the question. It's discuss, explain, illustrate, ये सब कुछ. इनका meaning you should know. What these keywords mean. Based on these keywords, the structure of answer will change. ठीक है? हम क्या करते हैं? कोई भी आंसर हो. For example, there is a question. Feminization of agriculture, okay, has led to women empowerment. Feminization of agriculture has led to women empowerment. Discuss. ठीक है? We will write. ये 150 words का है या 250 words का. We will write feminization of agriculture. इसके pros, इसके cons. और अगर वे फॉरवर्ड पता होगा, वे फॉरवर्ड लिखेंगे तो निकल गए. डिस्कस अगर लिखा है इसके साथ सेम आंसर होगा. एक्सप्लेन भी वही लिखेंगे हम. तो इससे हम क्या करते हैं, हम फिर जब घर पहुंचते हैं कि मैंने सारा पेपर अटेम्प्ट किया, देन लिस्ट में नाम कहीं पे भी नहीं. वाई? Whatever you have written is not wrong. ठीक है? You have the content, you have prepared, you have this preparation part with you. Whatever you have written is not wrong, but that was irrelevant. That was not asked. Irrelevant चीजों को इस आंसर राइटिंग चीज से निकालना ही is the skill of answer writing. If they are asking explain, or they are asking you analyze, or substantiate with the same question, like feminization of agriculture is led to women empowerment, the structure of the answer, the presentation of the answer will be different. हर एक में different होगा. हम क्या करते हैं, definition, pros, cons, अगर भैया फॉरवर्ड आता है, हर एक क्वेश्चन में हमारी यही अप्रोच होती है. And then we are telling that these institutes are corrupt. मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था, still my name is not in the list. Okay? JKPSC रिजल्ट निकालता है, still my name is, मैंने तो पूरा पेपर किया था, एक भी I was expecting high rank. खुद की एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होने वाला. ठीक है? Whatever you have written, it may be that that is a correct thing, but that is irrelevant with respect to your question. तो चाहिए नहीं हमें. And you don't know the difference. So in order to write a beautiful answer, you should know the meaning of all these key words. ठीक है? ये हम करेंगे थोड़ी देर बाद. इससे पहले we will see the importance, मतलब स्ट्रक्चर बनाना अपने आंसर का थोड़ा बहुत. The structure is important. In this structure, you will start. You have to start the answer. ठीक है? Then there is a body. Then there is conclusion. You have these three things associated with your answer. What impacts, what catches the eyes of your examiner is the start. ठीक है? ये एक रूल है. नो एग्जामिनर या आंसर चेकर, जो भी आपकी क्वेश्चन पेपर का ये आंसर पेपर बुकलेट चेक करता है,
ना उसके पास ये टाइम है, ना उसके पास ये फुर्सत है, वो आपके सारे आंसर पढ़ ले। समझ आ रही है बात? बेस्ड ऑन यूर फ्यू आंसर्स या फ्यू लाइंस एक अनुमान बन जाता है दिमाग में कि इस स्टूडेंट ने दूसरे आंसर्स कैसे लिखे होंगे। उस हिसाब से दे प्रिपेयर अ माइंड मैप एंड गिव यू मार्क्स। मैं नहीं कहता हर एक एग्जामिनर या आंसर चेकर ऐसा है, लेकिन मेजॉरिटी इज लाइक दिस। व्हाट यू शुड डू, यू शुड प्रेजेंट योर आंसर इन सच अ वे कि आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, आप उनसे आंसर अपना पढ़वा लो कि वो मजबूर हो जाए, नहीं मैं चाहता हूं कि इसने इसके आगे और क्या लिखा है। समझ आ रही है बात? यू शुड डेवलप दैट कैलिबर ऑफ आंसर राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग दैट आपने 2 लाइनें लिखी, आपकी 2 लाइनें पढ़ने के बाद ही शुड बी क्यूरियस कि आपने तीसरा क्या लिखा है, 4th लाइन कौन सी लिखी है। अगर आप में ये ताकत है एग्जामिनर से अपना आंसर पढ़वाने का, हो गया फिर, ठीक है। बट इफ योर आंसर इज लाइक कुछ भी आपने लिखा हो, ऐसे ही इररिलेवेंट स्टार्ट एंड ऑल, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपके आंसर में। तो पहले एक या 2 आंसर पढ़ के एक अनुमान लग जाएगा आपके बाकी आंसर्स का, एंड बेस्ड ऑन योर 2 आंसर्स यू विल डू 1, द मार्किंग विल बी डन ऑफ योर पेपर। ऐसा सीन पहले नहीं था, बिकॉज पहले अगर 10 क्वेश्चन थे या 20 क्वेश्चन थे, जो भी सबसे बेहतरीन आपको आता था, यू वर दिस गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राइट इट फर्स्ट। अब ऐसा नहीं है, देयर इज प्रिंटेड आंसर बुकलेट, जो पहला है वो पहला ही है, वो वैसे ही उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे, तो दैट इज एन इशू। अब इसको कैसे टैकल करेंगे? हाउ टू मेक योर स्टार्ट अट्रैक्टिव, प्रेजेंटेबल एज वेल एज रिलेवेंट। ठीक है, relevancy in this examination is very important. Relevancy as well as keeping it simple. Complicate नहीं करना है आंसर को, you have to keep it simple up to the expectations of the question as well as you have to make it relevant. ये सब कुछ दिमाग में रख के you have to make your start an eye-catching start. Simple, relevant to the question. इन सब चीजों के होते हुए भी योर स्टार्ट शुड बी आई कैचिंग। हाउ योर स्टार्ट शुड बी आई कैचिंग, कैसे होगा ये होगा डिपेंडिंग अपॉन द कीवर्ड। अगर कीवर्ड, अभी हम कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे, कुछ कीवर्ड्स पे डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी। व्हाट फॉर एग्जांपल, व्हाटएवर इज आस्क्ड, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज लेड टू वुमेन, you have to explain the definition of feminization of agriculture first. समझ आ रही है बात? Depending upon the keyword, the start shall consist of definition. अगर keyword different है, जिसमें definition पहले mandatory, you don't have to explain the things. You just have to think whatever statement has been given is correct. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम अभी देखेंगे, देयर आर क्वेश्चंस वेयर क्वेश्चन इज रिटन एंड यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज ऑलरेडी करेक्ट, वो एग्जामिनर ने वैसे ही लिखा है वहां से, तो उसके बाद वह डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे उस आर्गुमेंट को सपोर्टिंग आंसर्स लिखने हैं आपको कि हाँ ये करेक्ट है बिकॉज दिस 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 विद एग्जांपल्स एंड ऑल। समझ में आ रही है बात? इफ द कीवर्ड इज आस्किंग यू डेफिनेशन, यू विल डेफिनेटली राइट द डेफिनेशन फर्स्ट, इट विल मेक योर आंसर क्रेडिबल, और ये बहुत ही आई कैचिंग होता है। मगर कब? जब रिलेवेंट हो। डेफिनेशन से ही स्टार्ट करो, इफ पहले एक्सप्लेन करो, फिर व्हाट इज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, एंड देन गिव द लिंक। बट डिपेंडिंग अपॉन द कीवर्ड, ये करना है कि नहीं करना है। आप हर एक कीवर्ड में डिफाइन कर रहे हो वुमेन एम्पावरमेंट, चाहिए ही नहीं तो करेंगे क्यों? उसी में आपका स्टार्ट ही खराब हो जाता है, आपके मार्क्स आपको मिलते नहीं है। सेकेंड, you can start your answer with statistics. You can start your answers with statistics. What statistics? Health pay, for example, there is a question on health sector. You will start your answer by representing the amount of money spent as a part of GDP by government of India on health sector, और फर्टिलिटी रेट इन इंडिया, मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, जो भी आंसर आपको मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके रिलेवेंस के हिसाब से।
द फर्टिलिटी रेट इज दिस लाइक दैट, इंडिया का खर्चा भी जीडीपी पे इतना है, मोर्टेलिटी रेट इज लाइक दिस। द स्टेटिस्टिक्स के साथ आप स्टार्ट करोगे अपने आंसर को। दिस इज द सेकंड अप्रोच टू स्टार्ट, अ वेरी गुड अप्रोच टू स्टार्ट योर आंसर विद स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। थर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द कीवर्ड इन क्वेश्चन, कीवर्ड हम देखेंगे अभी। यू कैन स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन directly if the question demands so. Examine the role of finance commission, for example there is question on finance commission and its roles and responsibilities. You will start with directly mentioning article 280 of the Constitution of India has described about what फाइनेंस कमीशन, एंड उसके बाद जो भी एज पर दैट है। यू कैन हैव दिस अप्रोच, यू कैन हैव दिस अप्रोच, यू कैन हैव दिस अप्रोच, और you can have another approach that is current affair based approach. For example, there is a question on crude oil imports or import bill as subsidy या कुछ भी ऐसा, you can just start your answer from current affairs. In the wake of Russia-Ukraine war, पहले ही लिख दिया ऊपर, starting from the current affairs. In the wake of Russia-Ukraine war, the cost of international crude oil prices और wheat, क्योंकि वो wheat के बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर थे, उससे वो मार्केट में शॉर्ट हुआ, प्राइसेस बढ़ गई. You can start from that current affair, provided you know these things. ये तो पहली मैंडेटरी बात है. If you don't know these things, फिर एक ही बात है, कुछ नहीं हो सकता. You should know the concept very well. You should know the statistics related to your concept well. You should have a very strong hold with respect to the articles of the Constitution, at least major articles. And current affair तो है ही है. Why current affair becomes important? It means because of this. You can have an approach because of examples. जहाँ पे examples नहीं होगी, contemporary. This is how you start your answer, either by definition, by statistics, by article. You write it. ठीक है. सबसे पहले you have two things, preparation and presentation. It should be, your answer depends on your preparation as well as presentation skills. Then the basis of answer writing depends upon, पहले सबसे पहले ये किस पेपर में आया है, which general studies paper. ठीक है, यहाँ तक ये ऐसे. Now we will see body, how to give a good shape to the body of your answer. It again depends upon the question asked. If the question is asking you about a single dimension, यूजुअली सिंगल डायमेंशन ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें नहीं होता. सिंगल डायमेंशन आंसर्स आर रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट, योर जियोग्राफिकल प्रोसेस, जो साइंटिफिक है. वॉल्केनो एक ही तरीके से होगा, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है. ठीक है. ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन विल बी फॉर्म्ड बाय इट्स एस्टैब्लिश्ड दैट मेथड. उसके अलावा इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है. Whenever there is such type of question which is asking you, in which the question there is a single dimension present, you can write that question in a paragraph. सीधे
ठीक है, उसकी बॉडी सीधा पैराग्राफ। और अगर इसमें आपको लगा इसमें पॉइंट्स बनने की गुंजाइश है, देन यू कैन राइट एसोसिएटेड पॉइंट्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, यू विल डिफाइन द ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन एंड द कंडीशंस नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट साइक्लोन। यू कैन राइट इट इन पॉइंट्स 27 डिग्री surface temperature of water, Coriolis force should be present and everything. समझ में आ रही है बात? But if the question is about the subject that relates to humanities, इसमें एक डायमेंशन नहीं होगा। For example, dominant castes, ठीक है, dominant castes seeking reservation, dominant caste seeking reservation benefit, ठीक है, those castes which are not under reservation are seeking reservation benefits। इसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। कोई बोलेगा हाँ इनकी जस्टिफिकेशन है, ये ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, इनको चाहिए देना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं देना चाहिए, कोई एक मिक्स्ड अप्रोच लेगा। बेटर इज टू राइट दीज आंसर्स व्हिच हैव डिफरेंट डायमेंशंस इन 2 to 3 पैराग्राफ्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड लिमिट एज वेल एज द क्वेश्चन आस्क्ड। एक या दो तो मिनिमम पैराग्राफ्स बनाओ। पैराग्राफ क्या होगा, एक पैराग्राफ में यू विल कंसिडर वन डायमेंशन ओनली। अगर पॉजिटिव्स लिख रहे हो या फेवर में लिख रहे हो तो वो एक पैराग्राफ में, अगर अगेंस्ट लिख रहे हो तो दूसरे पैराग्राफ में। समझ आ रही है बात? यू आर राइटिंग मल्टीपल डायमेंशंस in this question in multiple paragraphs so that examiner gets a clear view आप किस पैराग्राफ में कौन सी बात कर रहे हो। आप फेवर में बता रहे हो या अगेंस्ट बता रहे हो, उनको ये पता होना चाहिए कि क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, बॉडी आपकी दूसरे तरीके से भी यू कैन अप्रोच इट। इफ इट इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द मिनरल सोर्सेस, हर एक क्वेश्चन में डायग्राम इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन यूपीएससी। डायग्राम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन कहां, जहां चाहिए डायग्राम। If question is on mineral resources, question is on national water divide, question is on something related to geographical phenomena and all, Pacific ring of fire, कुछ भी थोड़ा सा हल्का सा कुछ भी बना, plate tectonics बना दो, कुछ sea floor spreading theory कुछ बना दो कि convergence divergence हो रहा है, ठीक है, and explain that diagram। दूसरा अप्रोच बॉडी का ये हो सकता है कि आपने डायग्राम बनाया, पहले जो आपको एक्सप्लेन करना है वो आपने पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन में बना दिया एंड उसी को फिर डिफाइन कर दिया नीचे कि ऐसा फिनोमेना है। They are asking you about sea floor spreading theory. Just make that diagram. How mid-oceanic ridge is doing things middle of the ocean में, और वो कैसे वहाँ पे हो रहा है डाइवर्ज, और यहाँ ट्रेंच कैसे बन रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास, वो वाली डायग्राम। और वहाँ पे दिखाओ शैलो फोकस अर्थक्वेक कहाँ पे होगा, डीप फोकस्ड कहाँ पे होगा, मेंटल प्लूम्स कहाँ पे चढ़ेंगे, जैसा रेलेवेंसी होगी डायग्राम की, एंड यू जस्ट एक्सप्लेन इट। उसके बाद समझ आ रही है बात? दिस कैन बी अनदर अप्रोच ऑफ मेकिंग द बॉडी ऑफ योर व्हाट आंसर, डायग्रामेटिकल अप्रोच, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। सर सपोज हमारे पास क्वेश्चन है यही सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, अब हमने लिखा, हमारे पास पहले हमें लिखना है थोड़ा उसका, ऐसा कि अभी देखेंगे ना हम कीवर्ड पे कि हमें लिखना है कि नहीं लिखना है। जो हम डायग्राम बनाएंगे ना वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले ही बनानी है, कि मतलब दैट विल डिपेंड ऑन द कीवर्ड, आपसे पूछा क्या जा रहा है। इफ कीवर्ड मैंडेट्स दैट डेफिनेशन शुड बी गिवन तो डेफिनेशन देनी है, अगर नहीं तो डायरेक्टली यू विल स्टार्ट विद डायग्राम। आई विल शो यू द एग्जांपल्स कि कैसे।
ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज द कंक्लूजन. Conclusion 110% depends upon what? Keyword. Conclusion में हम वे फॉरवर्ड लिखते हैं, ठीक है, बट इट विल डिपेंड ऑन कीवर्ड कि लिखना है कंक्लूजन मैंडेटरी है कि नहीं. बट मेरा एक सलाह मान लो, अगर आपके पास टाइम है, वर्ड लिमिट है, तो राइट अ कंक्लूजन ऑफ 1 or 2 लाइंस. अगर जिस कीवर्ड में कंक्लूजन मैंडेटरी है तो बॉडी को थोड़ा शॉर्ट करो, कंक्लूजन में 3-4 लाइंस बनाओ. यू डोंट हैव योर विल डिस्पोजल, जितना आपको आता है उतना लिखना है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन. A PhD, a master's in geography can write more than you, लेकिन वो लिख नहीं पाएगा क्योंकि वो उसको लिखने के लिए लगेंगे 600-700 वर्ड्स, 500 वर्ड्स. यू हैव टू एक्सप्लेन दैट वेरी कंसेप्ट इन 150 or 250 वर्ड्स. ठीक है. Now we will understand what keywords. The first keyword will be discuss. Discuss. Whenever discuss is written in your question, discuss. ठीक है. You have liberty. You have a liberty to discuss anything. Be it positive point, negative point. It is social dimensions, its economic dimensions, its political dimensions, etc. Whatever you want to discuss. Always take a balanced approach in this. Discuss keyword. अगर आपने positive लिखा, थोड़ा सा negative भी लिख लो. ठीक है. आपने social लिखा, economic भी लिख लो, political implications भी लिखो. You have a liberty. इसमें liberty है. क्या है? Liberty. आप पे थोपा नहीं गया है कि आपको खाली नेगेटिव लिखना है या पॉजिटिव लिखना है. दिस इज लिबर्टी. वट एवर यू नो अबाउट दैट क्वेश्चन, राइट इट. बट रेलिवेंसी इज इंपॉर्टेंट. रेलिवेंट टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर. डिस्कस में यू हैव लिबर्टी टू राइट पॉजिटिव, नेगेटिव, सोशल, जो भी आपको मर्जी है, जिस हिसाब से आप आंसर को फ्रेम करना चाहते हो. एंड यहाँ पे स्पेशली JNK में जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो हर एक क्वेश्चन को ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे डिस्कस लिखा है. दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स. हर एक क्वेश्चन में वो वही लिखेंगे, उनको जो भी पता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, व्हाटएवर. तो ये नहीं है कोई राइट अप्रोच. ठीक है. वी विल सी इन दिस डिस्कस कॉमन लाइफ में. ठीक है. इफ यू एंड मी आर हैविंग ए डिस्कशन अबाउट समथिंग, ये वही है ना कि डिस्कस करो इसको. जब हम डिस्कस करेंगे, डिस्कशन का एक मैंडेटरी पार्ट है, ये याद रखो, वो आपके आंसर में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए. मैंडेटरी पार्ट. व्हाट इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ एनी डिस्कशन? इफ यू एंड आई आर डिस्कसिंग समथिंग, व्हाट इज द मैंडेटरी पार्ट? टू रीच एट अ कंक्लूजन. दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग. वरना डिस्कशन किस चीज का करना है? हम किसी चीज, मुद्दे को उठा रहे हैं, और उस मुद्दे को उठाने का मकसद ही यही है कि किसी नतीजे पे हम पहुंचे. ठीक है. Whenever you have discussed keyword associated with your question, you have to give your conclusion. Mandatory. 220% mandatory. विदाउट कंक्लूजन आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले. You have the liberty to write anything. Then first you should finish your answer with a conclusion. ठीक है. This is about what? Discuss. Comment. This is another keyword. Mostly आपको ये कीवर्ड मिलेगा कहाँ? आपके क्वेश्चंस में. कमेंट. ठीक है.
कमेंट जहां पे भी लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, यू हैव टू गिव योर ओपिनियन। दिस ओपिनियन कैन बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, करंट अफेयर, जो भी आपकी अपनी नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन, इट्स कमेंट, यू विल गिव इन 2 or 3 लाइन्स योर ओपिनियन। आप क्या कह रहे हो उस चीज के बारे में, ठीक है। इज रिजर्वेशन पॉलिसी अ बून और बेन? कमेंट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इट इज। ये अच्छा है कुछ की खराब है। यू विल राइट योर ओपिनियन इन 2 to 3 लाइन्स। पहले लिखा, योर ओपिनियन शुड बी रिफ्लेक्टेड फर्स्ट इन द आंसर when there is comment। लिखा अपना ओपिनियन, एंड अपने ओपिनियन को उसके बाद यू विल जस्टिफाई इन होल ऑफ द आंसर। पूरे अपने आंसर में अपने इस ओपिनियन को यू विल जस्टिफाई विद साइंटिफिक एविडेंसेस, विद स्टैटिस्टिक्स, विद फैक्ट्स, फिगर्स, एवरीथिंग यू नो। समझ आ रहा है? What about comment? You should give your opinion first and then justify it. इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला किस्सा नहीं है। The answer will be totally different. यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको भी, कमेंट लिखा होगा, हम लिखेंगे पॉजिटिव्स ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी एज अ बून, रिजर्वेशन पॉलिसी एज अ बेन, फिर देंगे कंक्लूजन। ये पूछा ही नहीं गया है आपसे। No one is asking you to write these things. irrelevant stuffs लिख रहे हो, कैंसिल, फिर रोते रहते हो कि सर हमें मार्क्स नहीं आया, हमने सारा लिखा था। सारा लिखने से कुछ नहीं होता, रेलेवेंट लिखने से होता है। कमेंट, यू विल गिव योर ओपिनियन एंड यू विल जस्टिफाई योर ओपिनियन इन रेस्ट ऑफ द आंसर। कुछ भी नहीं, वही है ना कंक्लूजन आपका। दिस इज ऑपोजिट टू डिस्कस, ठीक है। डिस्कस में व्हाट्स योर लास्ट थिंग, कंक्लूजन। जो आप फील करते हो, इतना डिस्कस करने के बाद आपने फील, इज रिजर्वेशन पॉलिसी अ बून और बेन? डिस्कस, वी विल डिस्कस इट्स पॉजिटिव्स। डिस्कशन तुम और मैं कर रहे हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस इट्स पॉजिटिव्स, वी विल डिस्कस इट्स नेगेटिव्स, देन वी विल कम टू अ कंक्लूजन। आप मुझे कुछ समझाओगे, मैं आपको समझाऊंगा, हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। नहीं जी ये कुछ गलत है, नहीं जी ये कुछ ठीक है, ठीक है, ऐसा ही। Whatever is the conclusion is the opinion in your comment. Whatever you write at last in discuss is the first thing you write in your comment. पहले ही वो चीज कंक्लूजन पे पहुंचो और फिर उसको जस्टिफाई करो। Your opinion is your conclusion. समझा रही बात? It's reverse. कंक्लूजन लास्ट में आपने पहले डिस्कस किया, उसको कंक्लूड किया, फिर ऐसे इधर पहले लिखो वो ओपिनियन अपना कंक्लूजन, फिर इसको जस्टिफाई करो। This is the importance of comment as a keyword. Okay? Next. There are two things with respect to this. और ये वाला जो आपने बोर्ड पे लिखा, 60 to 70% of your questions are in this format only. More than 50% of your paper will constitute of these keywords only. You have analyze, examine, evaluate. You have analyze, examine, evaluate. सर फिर फर्क क्या है? फर्क है क्रिटिकली का। क्या है? क्रिटिकली। पहली चीज, critically analyze, critically examine and critically evaluate. समझ में आ रही है बात? Analyze critically, examine critically, evaluate critically. ये 6 आंसर्स है एक ही चीज के।
रिजर्वेशन पॉलिसी एज अ boon or bane. For example, ठीक है, 1 answer, 2, 3, 4, 5, 6 answers, totally different. यहाँ क्या करेंगे हम? Pros, cons, conclusion निकलो. It's not like that. Answer writing is not इतना easy जितना आपने इसको समझ के रखा है. फिर इसका प्रैक्टिस के साथ हम easy बनाते हैं. These are 6 different answers. ठीक है? You will see if the critically keyword is written before, if the critically is written before the keyword is analyze, examine and evaluate, and it is written before. तो you need to discuss that thing, whatever जो भी आपको पूछा गया है, in a very in-depth manner. आपको इसका हर एक डायमेंशन टच करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, सोशल, सब कुछ डायमेंशन इसका टच करना है. लेकिन सर फिर डिस्कस और इसमें क्या फर्क है? डिस्कस और इसमें इनका फर्क है, इनको अलग अलग से देखेंगे, इनका क्या मतलब है. डिस्कस में यू हैव लिबर्टी टू डू एवरीथिंग, इधर भी क्रिटिकली में यू हैव टू डू एवरीथिंग, बट विद रेस्पेक्ट टू एनालाइज, एग्जामिन एंड इवैल्यूएट. अभी देखेंगे ना इनका भी क्या मतलब है. When this critically is after the keyword, analyze critically, examine critically, evaluate critically, then you have to touch the answer with respect to negative points. Majority negative. 80% you talk about negative points of those whatever thing जो भी पूछा जा रहा है. 80 to 90% you will talk in a negative way. Reservation policy, examine critically, evaluate critically, you will talk about the negatives. Feminization of agriculture has led to women empowerment. Examine critically, analyze critically, evaluate critically. Talk about negatives of feminization of agriculture with respect to women empowerment कि नहीं हो रहा है. So शुरू से ही no explanation, nothing like that. It should be you are talking about negatives only. हाँ, थोड़ा पॉजिटिव भी लिखो, बैलेंस नहीं करना है. It should be inclined towards negatives. 20% पॉजिटिव भी हो सकता है आपके एग्जाम इसमें क्वेश्चन में, but heavily inclined towards negative aspects. लिखा? लिखा ये सब? तो you should remember when critically is written after the keyword, you have to talk about negatives. आप इसमें भी क्या लिखते हो? Pros, cons. पॉजिटिव के 6 पॉइंट, नेगेटिव के 6 पॉइंट, फिर कंक्लूजन. कहाँ से मार्क्स मिलने वाले हैं? कौन देगा आपको मार्क्स? 250 मार्क्स का पेपर है. Some are scoring 40 marks, 50 marks. Even if attempting whole, they have attempted the whole paper. पूरा पेपर अटेम्प्ट करके उनको 40 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा है, कोई अपनी मन गदड़ बात इसमें नहीं लिखी है, खुद ही गढ़ी हुई. लेकिन क्या मसला था? इर्रेलेवेंट.
irrelevancy was the thing. Whatever there was in the question that has been asked, वो आपने नहीं लिखा. आपसे नेगेटिव्स पूछ रहे हैं, आप पॉजिटिव लिख रहे हैं. आपसे कंक्लूजन किसी ने पूछा ही नहीं, आप वो दे रहे. ठीक है. Now we will see what is the term analyze mean. This analyze. ठीक है. Whenever there is analyze, चाहे फिर क्रिटिकली के पहले हो या क्रिटिकली के बाद, उस हिसाब से आप फिर उसको देखोगे क्या है. Whenever there is analyze, you have to deconstruct the statement. You have to deconstruct the statement. For example, feminization of agriculture has led to women empowerment. लिखा? पहले deconstruct करो. इसमें देखो, there is feminization of agriculture and women empowerment. Define the terms. Mandatory है ये, ठीक है? Define करो किसको? Feminization of agriculture को. Define करो किसको? Women empowerment को. Then give the link between the two. दोनों को define करके क्या दो? Link. क्या है इसकी possible link? The relationship. It could be either positive or negative. कुछ भी हो सकता है. Depending upon the question asked. The link could be either positive or negative. Conclusion is not mandatory, but if you have time, you can write conclusion of 1 or 2 lines. Mandatory नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैंने mandatory लिखाया है, उस कीवर्ड में conclusion के बगैर आना नहीं. समझ आ रही है बात? Deconstruct the statement. Define what is feminization of agriculture. Define what is women empowerment. Give the link. अब अगर यही क्वेश्चन है, examine critically. You will analyze critically. You will analyze the question. You will define feminization of agriculture. You will, because analyze है. You will define women empowerment. Then after analyze it is critically. Then you will establish the link. But the link will be based on negatives. तो आपके मार्क्स कोई नहीं रोक सकेगा. समझ आ रही है बात? Examine. Examine में ये याद रखना चाहिए. Same question. Feminization of agriculture led to women empowerment. Examine critically. You will start with the question directly. No मैं बता रहा हूं, no need of defining terms. इतना तो भरोसा रखो ना यूपीएससी वालों पे. आपको अगर इसका पता है कि इसमें डिफाइन नहीं करना है, उनको भी पता है. ट्रस्ट यूपीएससी इन दिस. When there is examine, you just have to start with the relation that feminization of agriculture is leading to women empowerment या नहीं. Directly जैसा भी है उसको वैसे ही ट्रीट करो. No need to define feminization of agriculture or what is women empowerment. No definitions are required. Nothing like that. If it is examined critically, you will just start the question with the negatives itself. It is not establishing the link and vice versa. वो भी जो भी होगा, ठीक है? Evaluate. Evaluate में ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें you have to give suggestions. And a way forward. And a कि आपने जो ये सजेशंस दिए ना ऊपर,
ये कैसे इंप्लीमेंट होगी? Whenever there is evaluate the reservation policy of India. You will give your suggestions with respect to reservation policy कि इसको और एक सबको दे दो, या खत्म कर दो, या बैलेंस कर दो, या कम कर दो, क्रीमी लेयर हटाओ, जो कुछ भी आपको सजेशन देना है. Whatever suggestions you are giving, provide as a way of implementing your suggestions. ये ऐसे वेग हवा में बातें नहीं करनी है, ठीक है? आप कुछ भी सजेस्ट करोगे जो ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. आपने कहा इंक्रीज द फूड सब्सिडी टू एवरीवन इन द कंट्री. हम ठीक है, चलो मान लेते हैं. कैसे? आप लिखोगे ऐसे करो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बोलो सबको दे दो, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, सब्सिडी बिल बढ़ जाएगा, डेफिसिट होगा, बहुत सारी चीजें. ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सोल्यूशन है. समझ में आ रही है बात? When you have evaluate, you will give your suggestions first. दे दिया आपने suggestions. उस सजेशन को आप वे फॉरवर्ड में बताओ, वे फॉरवर्ड में कि वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे होगी. आपने कहा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें शिफ्ट करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल से कम होना चाहिए, ठीक है? आपने आंसर में आपने सजेस्ट कर दिया. वे फॉरवर्ड में लिखो वी शुड इंसेंटिवाइज द न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स. उसको लाइसेंस तभी मिलेगा जब वो अपने टॉप वाले फ्लोर पे मतलब कुछ एरिया रिजर्व रखेंगे सोलर पैनल लगाने के लिए, ठीक है? एक जो कॉर्पोरेशन होगा जिसका टर्नओवर इतना से ज्यादा होगा, उसको मैंडेटरी चाहिए 50% या 25%, जितना भी आपको ठीक लगे. इससे ज्यादा जो उसको अपनी इंडस्ट्री में लगता है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, दैट शुड कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स. जिसका मतलब दीज आर प्रैक्टिकली दिस जो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं. फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करनी है, इसी पे क्वेश्चन आया है विद द कीवर्ड इवैल्यूएट. यू आर गिविंग योर सजेशंस दैट वी शुड ट्रांसफर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड ऑल. ये आपने बता दिया, करना है ना, करो. कैसे करेंगे? यू विल टेल दैट यस कॉर्पोरेट्स हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ टर्नओवर, मैंडेटरी उन पे करो ऐसा. हाउस होल्ड्स को सब्सिडी दे दो अगर वो ये ले रहे हैं, कौन? सोलर पैनल्स. इंसेंटिवाइज करो इस इंडस्ट्री को जो सोलर पैनल्स के साथ कर रहे हैं काम. ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, बहुत कुछ. यू हैव टू गिव द suggestions and then you have to give the way forward in favor of your suggestions. शुरू से सजेशन से शुरू करना है और फिर वे फॉरवर्ड. It will depend on the question. What type, in what capacity it is asking. Evaluate the reservation policy of India. It will, you have to शुरू से ही इसको आपको चलना है. 2 लाइनों में reservation policy in India is said to be a blessing in disguise for these unprivileged class of section of society. It has led to this and then you have to start. Trust UPSC, उनको पता है reservation. थोड़ा सा उनको credible रखो, credibility उन पे रखो कि they know. They are asking you, as कैपेस करो, हमें करना क्या है आप रिजर्वेशन पॉलिसी का? सर हमें ये करना है, ठीक है, डन. कैसे? सर ये पे फॉरवर्ड में. समझ आ रही है बात? नेक्स्ट. सर ये जो है ना, अब ये वाला क्रिटिकल एग्जामिन वाला एक बार थोड़ा बहुत बताए. मतलब ये इसमें हमें आया समझ के हमें एक ये जो है नेगेटिव लिखना है इसमें, जब क्रिटिकली होगा बाद में. क्या बात है? ये वाला पोर्शन हमें समझ आया. तो अब इसमें थोड़ा बहुत बताया कि जैसे आपने कहा ना यहाँ पे हमें इन डेप्थ Critically examine. You have to, for example, analyze. Critically analyze. एनालिसिस में आपका सबसे पहला है यू हैव टू डीकंस्ट्रक्ट. ठीक है? डेफिनेशन को इन डेप्थ नॉलेज से, पेरिफेरल बेसिस पे डेफिनेशन नहीं. मतलब साइंटिफिक डेफिनेशन अगर अवेलेबल है हमें उस फील्ड में, देन गिव दैट. यू शुड नो दिस. यू हैव टू गिव एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस यहाँ पे, क्योंकि यू हैव टू गिव इन डेप्थ टच टू द कांसेप्ट दैट हैज बीन आस्क्ड, कीपिंग इन माइंड द एनालाइज थिंग कि आपको पहले डिफाइन करना है. इन डेप्थ यहाँ पे आपको कंटेम्पररी एग्जामिनर में यू डोंट हैव टू डिफाइन द थिंग्स, बट यू हैव टू
directly start with the question. You will directly start with the question by giving contemporary examples. आपने कहा कुछ, यहाँ पे आप उसको डिफाइन नहीं करोगे एग्जाम्पल्स देकर, क्योंकि आपको इन डेप्थ उतना नहीं जाना है. यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी दोगे रियल लाइफ की. देखो रशिया यूक्रेन में क्या हुआ था, देखो गल्फ वॉर के टाइम क्या हुआ था, ऐसा फूड सब्सिडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने किए हैं, हमारे इंपोर्ट मार्केट में इशू, एक्सपोर्ट मार्केट में इशू आ रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में इशू आ रहा है. Your statement here should be full of contemporary issues and examples, कि ताकि पता चले बच्चे का होल्ड है इस पे क्वेश्चन पे. He or she knows what he or she is writing. Elaborate. ठीक है. Elaborate में one thing is mandatory, one thing is mandatory. You have no freedom या liberty या choice. ठीक है. You have no freedom, liberty or choice to disagree. You can't disagree. Whatever it is written, assume that it is true. It is true. Assume that it is true. Just elaborate that statement with the examples. You have no option of disagreement here. Whatever statement is given, this statement has to be considered it is true. True ab initio, पहले से ही ये true है. True है? Yes. किया ना आपने भी consider yes it is true. Examples के साथ define करो नीचे इसको कि कैसे कैसे true है. Are you getting my point? Yes. Take it as a true statement and then with examples elaborate the statement itself. That's the answer to this question. अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जिन्होंने keywords नहीं आते हैं, elaborate लिखा है, वो लिखेगा positive points इसके फेवर में, फिर लिखेगा negative points जो इसके खिलाफ है. You have no freedom of disagreement. It is वहीं पे इसको 0 मिलेगा. 1-2 मार्क्स नहीं, पूरा 0. Even if he has written right, जो भी उसने लिखा है सही लिखा है, उसने गलत कुछ नहीं लिखा. पॉजिटिव में ये सपोर्ट करता है, नेगेटिव में उसने सारे पॉइंट्स ठीक लिखे. आपसे पूछा नहीं किसी ने, आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपने स्टेटमेंट दिया है ये सच है, इसको मान के चलो ये सच है, इसी को एक्सप्लेन करो, इसी को बढ़ाओ एग्जाम्पल्स के. इसके डिसएग्रीमेंट में कुछ मत करो, इस पे डिबेट नहीं करना है हमें. यू डोंट हैव टू डिबेट. डिबेट का कोई स्कोप इलैबोरेट में नहीं है, डिबेट का स्कोप डिस्कशन में है. समझ आ रही है बात? लिखो अपनी लैंग्वेज में इसको. This is about elaborate. ठीक है. Another thing, substantiate. Substantiate. It's a keyword. ठीक है. Whenever you have a question that has a keyword substantiate, you have the freedom to disagree. Statement दिया है ना कोई, you can disagree.
जरूरी नहीं यू विल डेफिनेटली डिसएग्री, ट्रीट दैट स्टेटमेंट एज ट्रू, इलैबोरेट की तरह इसको ट्रू ट्रीट करो और एग्जांपल्स दे दो, कोई इशू नहीं है। यू कैन डिसएग्री, ट्रीट दैट स्टेटमेंट एज फॉल्स, ठीक है, गिव एग्जांपल्स इन सपोर्ट। Give examples in support of that thing. Even if you are treating that statement as true, give examples in support of your opinion, your disagreement. समझ आ रहा है? In substantiate you have what? Freedom to disagree. But आप दोनों नहीं लिख सकते हैं। Disagree अगर किया, statement को true है, इसको आप consider कर रहे हो false. You will not write pros and cons. आपको ये समझ आ रहा है कि ये कितना ग्रेव कंसर्न है कीवर्ड्स का। आंसर में तबाही मच जाएगी अगर आपने इनको अच्छे से नहीं समझा। Here you will have a freedom to disagree. आपने डिसएग्री किया, आपने कहा स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन स्टिक टू फॉल्स ओनली, नो नीड टू स्टिक। अब ये ट्रू भी बोलोगे, इसके प्रोज भी बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपने कहा स्टेटमेंट इज ट्रू, गिव एग्जांपल, स्टिक टू दिस ओनली। अब ये फॉल्स नहीं होगा। समझ आ रही है बात? यू हैव द फ्रीडम टू डिसएग्री बट यू शुड स्टिक टू वन ऑफ द चॉइसेस। ठीक है? Another is explain. Another is explain. It will depend. यहाँ पे इशू होगा, यहाँ पे you have to see क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले नजर जानी चाहिए जनरल स्टडीज का कौन सा पेपर है, ठीक है। प्लस उधर में ये साइंटिफिक पोर्शन में क्वेश्चन है या ह्यूमैनिटीज में है, आपके सोशियोलॉजी में है या आपके पॉलिटी में है या आपके एनवायरनमेंट इकोलॉजी या जियोग्राफी में है या साइंस एंड टेक में है। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन। इसका एक ही फिनोमेना है, इसका कोई भी दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं है, इसको किसी दूसरे एंगल से आप देख ही नहीं पाओगे, इसका कोई एंगल ही नहीं, इसका एक ही एंगल है। न्यूक्लियर फिजन ऐसे होता है या फिशन ऐसे होता है तो होगा, दैट्स इट। यू हैव टू सी साइंटिफिक क्वेश्चन अगर है देन यू विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट हैविंग ओनली वन पर्सपेक्टिव। इसमें कोई डिफरेंस डिसएग्रीमेंट की पर्सपेक्टिव दूसरे तरीके की बात ही नहीं है अगर साइंटिफिक क्वेश्चन है। If the question is with regards to humanities, it can definitely have multiple perspectives, and each perspective you will define in every para, अलग अलग। पैराग्राफ वाइज वन पर्सपेक्टिव, सेकंड या तीन, मैक्सिमम तीन, मिनिमम एटलीस्ट दो, ठीक है। यू विल डिफाइन इट explain the impact of globalization or modernization on joint family system of India. It has multiple perspectives, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। वहाँ से इंडिपेंडेंस आ गई, प्राइवेसी को इसने अच्छा किया, हमने न्यूक्लियर फैमिलीज, वहाँ से बहुत सपोर्ट चला गया, मोरालिटी चली गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इल्यूसिडेट। Elucidate. Elucidate
इसमें you will be asked a question. Illustrate me. Examples are mandatory. Examples are mandatory. लेकिन इसमें एक कैच है. You are giving example number 1, example number 2, example number 3, example number 4, for example. In each and every example, you will define once again the concept asked. एक होता है एक बार कंसेप्ट ऊपर लिख दिया, लिखा मैंने यहाँ पे कंसेप्ट, दिस इज रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन है, लाइट की रिफ्लेक्शन पे सवाल है, मैंने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ऊपर 3 लाइंस पे लिखा, उसके बाद एग्जाम्पल्स नीचे दी. ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल में आपको वापस लेके जाना पड़ेगा रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की ओर, कि देखो यहां से ऐसे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है. You have to take this back to the definition in every example, not just writing an example. You have another thing known as illustrate. यहाँ पे डिफाइन किया रिफ्लेक्शन इलस्ट्रेट में एक बार, उसके बाद एग्जाम्पल्स दे दी, उसके बाद आपको इन एग्जाम्पल्स में वापस डेफिनेशन की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है. नॉर्मल जैसे हम बचपन से लिखते थे, ये वो वाला है इलस्ट्रेट. यहाँ पे एग्जाम्पल लिखोगे आप, टॉर्च बीम ऑफ लाइट ऑन दिस मिरर, ये सीधे लिख दिया आपने, ये इसकी एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन की. अपने आप को आप देखते हो पानी में, इन लेक और पॉन्ड, वो एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन की. लेकिन यहाँ पे इफ इट इज इल्यूसिडेट, यू हैव टू टेक इट बैक टुवर्ड्स द डेफिनेशन, कि देखो इससे देखो क्रिएट हो रही है ना वो डेफिनेशन जो हमने ऊपर लिखी. These are the major keywords that you have to keep in mind while writing an answer. It is not an easy stuff to write an answer in UPSC mains, but with practice, with the knowledge of these keywords and your conceptual clarity, पहले तो content होना चाहिए ना आपको पता है, keyword बाद में आएगा. This is with respect to the structure of exam, है ना question. इससे आपका स्ट्रक्चर डिफाइन होगा. आपको खाली नेगेटिव्स लिखने हैं, या कहीं पे नेगेटिव पॉजिटिव फिर वे फॉरवर्ड, या कहीं पे विद एग्जांपल्स, वो लिखना है ना. वो उसके लिए क्या चाहिए? कंसेप्चुअल क्लैरिटी. योर प्रिपरेशन शुड बी साउंड. समझ में आ रही है बात? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? आंसर राइटिंग इन यूपीएससी. मोटा मोटा है. टू प्रैक्टिस इट, यू रिमेंबर दीज कीवर्ड्स, इससे क्या होगा? रेस्ट विल बी